Everyone, I'm Abrar Vani. Here I'm going to start the first topic of mental health disorders. Before starting the topic, please subscribe my channel, Nursing Officers. So, moving towards the introduction, the mental health disorders are classified into three groups. One is psychotic disorder, second is neurotic disorder, and third is other special disorders. In the psychotic disorder, first of all, we learn about the psychotic disorder. What do you mean by psychosis? What is the difference between psychosis and neurosis? This is very important in case of examination point of view. So, psychotic means severe mental disorder that causes abnormal thinking. I would write here severe mental disorder that cause abnormal thinking and perception. See this is very important. Severe mental disorder that cause abnormal thinking and perception is called psychosis or psychotic disorders. What do you mean by abnormal thinking? Abnormal thinking means abnormal thought process. This abnormal thought process you will learn later in the symptoms when we learn about the schizophrenia. And disorders or abnormal perception means disorders in perception, which is called hallucinations or delusions. Means in psychosis there will be the presence of hallucinations and delusions. In case of neurotic disorder, the neurotic disorder means the functional mental disorder which involves distress. Keep this in your mind. Functional mental disorder which involves distress is called as neurotic disorder. But what is the difference between psychotic and neurotic disorder? It's just that in psychotic disorder there is a presence of abnormal perception, that is there is a presence of hallucinations and delusions. In neurotic disorder there will be absence of hallucination and delusion. So if anybody asks you what's the difference between psychosis and neurosis, in psychosis there occurs the hallucination and delusions. In neurosis there is absence of hallucination and delusions. Okay, then in psychotic disorder we have to study about the schizophrenia. Schizophrenia is our first topic. After that we'll study about mania, then bipolar disorders. Okay, and then in neurotic disorder we have to study about anxiety neurosis, depression neurosis, obsessive neurosis, and phobic neurosis. And other special disorders are there. For example, personality disorder is there, substance abuse disorder is there, eating disorders are there, and some sexual disorders are there, which we'll learn in the coming topics. Okay, so these all disorders will take about 10 to 12 topics will be there for this. In 10 to 12 topics we'll complete the these mental health disorders. After that we'll have one set of MCQs that will be of MCQs, and that will be of 2 lectures. Okay, by 14 or 15 lectures we'll complete these mental disorders. After that we'll study about the psychotherapy and other things in the mental health nursing. So moving towards our first psychotic disorder, that is the schizophrenia. So what is the schizophrenia? First of all, schizophrenia is derived from the Latin word. 2 words are there, schizo and phrenia. Schizo means split, phrenia means mind. So it is derived from 2 words, schizo and phrenia. Schizo means split, phrenia means mind. It's also called as split mind. Moving towards definition, it is the psychotic condition characterized by disturbance in thinking, emotions, violations, faculties in presence of clear consciousness that usually led to social withdrawal. I'll read once again. It is a psychotic condition characterized by disturbance in thinking, emotions, violations, faculties in presence of clear consciousness that usually led to social withdrawal. See, अगर आप इस डेफिनेशन की ओर अच्छे से ध्यान दोगे,
इसमें आप डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशंस, वायलेशन एंड फैकल्टीज अगर आप जानोगे क्या इसका मतलब क्या है अच्छे से, सिमिलरली आपको साइंस एंड सिम्टम्स अच्छे से पता होंगे, ठीक है ना। इट इज़ अ साइकोटिक कंडीशन, मैंने पहले ही बोला ये डिजीज साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आता है, सॉरी, ओके, विच इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, विच इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग? Disturbance in thinking means abnormal thought process. It means abnormal thought process. Abnormal thought process is the disturbance in thinking. For example, इसमें क्या आएगा हमारा thought blocking और न्यूरोलॉजिज्म वगैरह आएंगे जो हम पढ़ेंगे आगे आगे, साइंस एंड सिम्टम्स, ओके। देन देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन इमोशंस और इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस में क्या आएगा? अपैथी, mistrust, okay, apathy means loss of interest, apathy means loss of interest, ये मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। या mistrust, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं होना, that is called as mistrust. Then there will be disturbance in violations. Violation is here the new word. What do you mean by violation? Violation means, see here, I will write here, violation means act of using your will to make decisions. So violation means act of using your will to make decisions. जैसे नॉर्मली कोई मेंटली हेल्दी इंसान हो, वो अपना डिसीजन खुद लेता है, अगर इस डिसीजन प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस आए, दैट मीन्स डिस्टर्बेंस इन वायलेशन, ओके, ये याद रखना है हमेशा। वायलेशन मीन्स एक्ट ऑफ यूजिंग योर विल टू मेक डिसीजंस, ओके। सो इन स्किज़ोफ्रेनिया देयर विल बी द disturbance in violations, okay. Then disturbance in faculties. What do you mean by faculties? Faculties means ability to think clearly and in the broad way. Faculty means ability to think clearly and in the broad way, okay, ability to think clearly and in the broad way. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपना कोई टास्क कंप्लीट करना है, वो अच्छी तरह, जो भी मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अच्छी तरह अपना टास्क क्लियरली और कंसाइजली अपना टास्क कंप्लीट करेगा, ओके। अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिक होता है, वो अपना टास्क वगैरह कंप्लीट नहीं कर सकता, ओके, वो उसका थिंकिंग मैकेनिज्म जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। सो देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन फैकल्टीज, दैट मीन्स एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड इन अ ब्रॉड वे। In presence of clear consciousness होना चाहिए, that usually led to social withdrawal. It's very important this definition. अगर ये definition आपको याद हो जाए अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाए, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। That schizophrenia is the psychotic condition characterized by disturbance in thinking, emotions, violations, faculties in presence of clear consciousness that usually led to social withdrawal. Okay, so we'll move forward. Now, what will be the causes for this? क्या हो सकता है, किन काजेज से ये, इसका काज क्या हो सकता है, किन काजेज से ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, ओके। जो इसका एग्जैक्ट काज है अभी तक, एग्जैक्ट काज इज अननोन, एग्जैक्ट फर्स्ट पॉइंट, एग्जैक्ट काज इज अननोन, ओके, एग्जैक्ट काज इज अननोन, बट सम थ्योरीज आर देयर विच define the schizophrenia. For example, biochemical theory is there. Biochemical theory is there. Biochemical theory क्या कहती है हमें कि schizophrenia जो होता है, schizophrenia occurs due to disturbances in neurotransmitters in the body. अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो बॉडी में होते हैं, अगर उनमें डिस्टर्बेंसेस आए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया। फॉर एग्जांपल डोपामिन, ओके, डोपामिन से क्या होता है,
बायोकेमिकल थ्योरी कहती है दैट इंक्रीज्ड डोपामीन विल कॉज स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार आया है दैट इंक्रीज्ड डोपामीन कॉजेज स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, अगर डिक्रीज्ड होगा तो क्या होगा, अगर डिक्रीज्ड डोपामीन होगा तो क्या होगा, पार्किंसोनिज्म डिजीज। ओके, ये याद रखना है हमें हमेशा दैट डिक्रीज्ड डोपामीन causes Parkinsonism. Okay, so हमें याद रखना है that increased dopamine will cause schizophrenia. Very good. Okay, then some of the risk factors are there. कुछ risk factors हैं जो ट्रिगर करते हैं इस डिजीज़ के लिए, ये डिजीज़ होने में। ओके, वो रिस्क फैक्टर्स क्या है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, अगर किसी जगह स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो, ओके, स्ट्रेसफुल environment, okay, and emotional events यहाँ बोल सकते हैं any traumatic past events, okay. So these are the causes. Exact causes unknown. We have some theories. For example, we have biochemical theories. Biochemical theories क्या कहती है, schizophrenia occurs due to disturbances in the neurotransmitters in the body. For example, dopamine. Increased dopamine causes schizophrenia. Okay, or some of the risk factors are there. For example, stressful environment, emotional events, or any past traumatic events. Okay, these are the causes. Now moving towards the symptoms. Symptoms are very, very, very important in the examination point of view. Examination point में competitive exam में बहुत सारे questions आते हैं in the symptoms of schizophrenia. Okay, so symptoms is divided into primary and secondary symptoms. Okay, first of all I will tell you about primary symptoms. Primary symptoms होते क्या है मैं वो बताऊंगा आपको. प्राइमरी सिम्टम्स वो होते हैं, दीज सिम्टम्स ओकर फर्स्टली इन एनी पर्सन. ओके, हम पहले ये सिम्टम्स देख सकते हैं एंड दीज आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ इन स्किज़ोफ्रेनिया. मेजर सिम्टम्स. ओके, प्राइमरी सिम्टम्स में बिल्यूलर्स 4A आता है हमें. ओके, बिल्यूलर्स 4A. ओके, 4A means A for affective disturbance, A for autistic thinking, A for ambivalence, A for associative looseness. ये याद रखना है हमेशा. So in the symptoms, in the major symptoms, there comes the biल्यूलर्स 4A. One is the affective disturbance, one is the autistic thinking, one is the ambivalence, one is the associative looseness. Okay, हम one by one पढ़ेंगे what do you mean by these things. Okay, मगर इतना याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया है that what are the biल्यूलर्स 4A or what in the following, below following, which are the following comes in the primary symptoms of the schizophrenia. ऐसे questions आए हैं. Okay, first there is the affective disturbance. Affective disturbance क्या होता है, ये mood disorders होते हैं. Simply these are the mood disorders. अगर किसी को mood disorders हो, okay, अगर किसी क्लाइंट में, हम यहाँ पे क्लाइंट बोलेंगे, अगर किसी क्लाइंट में mood disorders हो तो हम बोल सकते हैं that this is the first symptom of the schizophrenia. Okay, then second is autistic thinking. Autistic thinking क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटिस्टिक थिंकिंग. इसमें क्या पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को अपने ही आइडियाज होते हैं. क्लाइंट हैज इट्स ओन आइडियाज. ओके, यहाँ हम बोल सकते हैं client has its own thoughts, its own inner thoughts. What do you mean by that? Client has its own ideas or client has its own thoughts. इसका मतलब ये है, जो क्लाइंट जो होता है वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है, खुद के ही वर्ल्ड में. ओके, खुद ही अपने आइडियाज़ बनाता है, अपने लिए आइडियाज़ बनाता है, खुद ही उन आइडियाज़ में जीता है इन द फैंटेसी वर्ल्ड. ओके, द क्लाइंट लिव्स इन द फैंटेसी वर्ल्ड, और हम बोलेंगे द क्लाइंट लिव्स इन its own world. Okay, या हम बोल सकते हैं क्लाइंट अपने ही दुनिया में होता है. ठीक है ना. सो ऑटिस्टिक थिंकिंग मीन्स क्लाइंट हैज़ इट्स ओन इनर थॉट्स, जिसकी वजह से क्लाइंट जो होता है वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है. ठीक है ना.
उसको हम बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। ये कौन किसका सिम्टम है? दिस इज अ सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। देन द थर्ड सिम्टम इज देयर एम्बिवैलेंस। एम्बिवैलेंस क्या होता है? हैविंग कंट्राडिक्टरी एटीट्यूड और फीलिंग, having contradictory attitude or feelings. Okay, contradictory means having, या हम बोल सकते हैं ऐसे, having opposite feelings towards someone, having opposite feelings towards someone. Okay, having opposite feelings towards someone, this most important, ये एग्जाम में आता है. What do you mean by ambivalence? Ambivalence होता है having contradictory or having opposite feelings towards someone. Then the last is there associative looseness. Associative looseness क्या होता है? Means that the client has loose connection between ideas. That the client has, associative looseness means that the client has loose connection between the ideas. Client has loose connection between the ideas. या हम बोल सकते हैं ऐसे, द क्लाइंट शिफ्ट फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया. क्लाइंट एक ही आइडिया पे नहीं रहता है. क्लाइंट जो होता है वो एक आइडिया पे शिफ्ट करता है दूसरे आइडिया पे, और जो पास्ट वाला आइडिया है वो भूल जाता है. ठीक है ना? दैट इज एसोसिएटिव लूजनेस, दैट द क्लाइंट हैज लूज कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज. मैंने अच्छे से समझाया आपको. बिलीलुरस 4A वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दैट 4A मीन्स A for affective disturbances, A for autistic thinking, A for ambivalence, A for associative looseness. Okay, and affective disturbance means mood disorders. Autistic thinking means client has its own ideas, inner thoughts. Ambivalence means having contradictory attitude or feelings. Okay, या हम बोल सकते हैं having opposite attitude or opposite feelings to someone. Okay, या हम बोल सकते हैं having opposite feelings towards someone. Okay, then there is associative looseness. Associative looseness में क्या होता है? Client has loose connection between the ideas. यहाँ हम बोल सकते हैं client shift from one idea to another idea, और जो past वाला idea है वो भूल जाता है वो. ठीक है ना? Okay, this is the primary symptoms of the and most important symptoms of the schizophrenia, that is Blue-Lewis 4A. Then moving towards the secondary symptoms, यहाँ हम बोल सकते हैं इसको accessory symptoms. Accessory symptoms. प्राइमरी सिम्टम्स के साथ साथ कुछ एक्सेसरी सिम्टम्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन. फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान रखें. फॉर एग्जांपल, थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर्स. थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर्स. थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है वो हम पढ़ेंगे वन बाय वन. फर्स्ट इज थॉट ब्लॉकिंग, सेकंड इज लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, थर्ड इज न्यूलॉजिज्म, फोर्थ इज पोरिटी ऑफ स्पीच एंड आइडिएशन, फिफ्थ इज इकोलेलिया, सिक्स्थ इज परसेवरेशन, सिक्स्थ इज डिल्यूजन्स. ओके, ये एग्जाम में ऐसे ही आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय न्यूलॉजिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलेलिया, व्हाट डू यू मीन बाय परसेवरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिल्यूजन्स. ओके, वन बाय वन हम पढ़ेंगे. थॉट ब्लॉकिंग मीन्स अ सडन पॉज इन द थॉट प्रोसेस. अ सडन, मैं यहाँ पे लिखूंगा, अ सडन पॉज, अ सडन पॉज इन द थॉट प्रोसेस. किसी भी थॉट प्रोसेस में सडन पॉज आए उसको हम बोलते हैं थॉट ब्लॉकिंग. मगर यहाँ पे आपको याद रखना है, आफ्टर द पॉज, पॉज के बाद, आफ्टर द पॉज, सब्जेक्ट कैन नॉट रिकॉल, सब्जेक्ट कैन नॉट रिकॉल व्हाट ही और शी हैड टू से. मतलब एक पॉज आता है थॉट प्रोसेस में. ओके, थॉट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, पॉज के बाद सब्जेक्ट को या क्लाइंट को पता ही नहीं होता है उसको क्या कहना था. ठीक है ना? दैट इज अ थॉट ब्लॉकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इन द विच कम्स अंडर द थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर्स. ओके, जैसे मैंने आपको बोला था, एसोसिएटिव लूजनेस में क्या होता है, वो जंप करता है, क्लाइंट शिफ्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है ना? मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉज आता है. अगर कोई इंसान किसी के बारे में सोचता है या कुछ कहता है, वहाँ पे पॉज आए बीच में ही कुछ, और फिर वो इंसान रिकॉल नहीं कर सकता है मुझे पास्ट में क्या हुआ. दैट इज अ थॉट ब्लॉकिंग, दैट इज अ थॉट ब्लॉकिंग. ओके, सेकंड इज लूजनेस ऑफ एसोसिएशन. सेकंड क्या हो, सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, लूजनेस ऑफ एसोसिएशन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लूजनेस ऑफ एसोसिएशन? क्लाइंट शिफ्ट फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जैसे हमने पढ़ा ना वहाँ पे एसोसिएटिव लूजनेस, यही सेम वो ही है. क्लाइंट शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू another point. Okay, client shift होता है from one point to another point. That is the looseness of association or associative looseness जो हमने पढ़ा in the primary symptoms. Okay, then third, neologism, very important. Okay, neologism में क्या करता है patient? Neologism means patient coins new words. Okay, patient coins new words और phrases. ओके, पेशेंट कॉइन करता है, पेशेंट खुद ही बनाता है नए वर्ड्स और नए फ्रेजेस दैट हैज़ नो मीनिंग टू हिमसेल्फ ऑन, दैट हैज़ मीनिंग टू हिमसेल्फ, दैट हैज़ नो मीनिंग टू एक्सटर्नल वर्ल्ड. ओके, दैट हैज़ मीनिंग टू हिमसेल्फ ऑन, हमने यहाँ पे लिखी दैट हैज़ मीनिंग टू हिमसेल्फ ओनली. ओके, सो न्यूलॉजिज्म मीन्स न्यू वर्ड्स कॉइन करना. वो वर्ड्स पेशेंट को ही पता होता है कि ये वर्ड्स क्या मायने रखते हैं उसके लिए, ठीक है ना. दैट वर्ड्स हैव नो मीनिंग इन द एक्सटर्नल, मतलब हमारे लिए उन वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं होती है. ओके, दैट्स अ न्यूलॉजिज्म मीन्स पेशेंट कॉइन्स न्यू वर्ड्स. इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आया है. और डू यू मीन बाय न्यूलॉजिज्म? इन द न्यूलॉजिज्म पेशेंट कॉइन्स न्यू वर्ड्स और फ्रेज दैट हैज मीनिंग टू हिमसेल्फ ओनली. ओके, देन द पेशेंट हैज पोवर्टी ऑफ स्पीच एंड आइडिएशन. ओके, मीन्स स्पीच पोवर्टी. ओके, बोलने में पेशेंट अच्छे से बोल नहीं सकता है और अच्छे से सोच नहीं सकता है. उसके दिमाग में जब आइडिया शिफ्ट होंगे वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तब पोवर्टी होती है आइडियाज़ में. ओके, देन इकोलेलिया इज देयर. इकोलेलिया इज अ स्पीच डिसऑर्डर. इट मीन्स रिपीटेशन ऑफ स्पीच. ओके, कोई स्पीच हो उसको बार बार रिपीट करे, दैट वी मीन एज इकोलेलिया. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखना अच्छी तरह से. इकोलेलिया मीन्स रिपीटेशन ऑफ स्पीच. ओके, देन परसर्वेशन इज देयर. परसर्वेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ words, sentences और phrases. कोई वर्ड हो, सेंटेंस हो या फ्रेज हो, उसको बार बार रिपीट करना मीन्स परसर्वेशन. ओके, यू सी हियर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोलेलिया एंड परसर्वेशन. एग्जाम में ये बहुत बार गलत होता है. इकोलेलिया मीन्स रिपीटेशन ऑफ स्पीच, परसर्वेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस और phrases. Okay, then there is another disorder that is called as delusion. Delusion means unshakable false or mixed belief. Unshakable false or mixed belief. Okay, unshakable false or mixed belief is known as delusions. ठीक है ना. डिल्यूजन्स हम इंशाल्लाह हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स हम इसके लिए एक अलग से एक क्लास लेंगे. we'll take one separate class for delusions and hallucinations because this is a very important topic, the types of delusion and types of hallucinations. Okay, the types of delusion बहुत तरह के होते हैं, जैसे delusion of guilt है, जैसे paranoid delusion है, जैसे nihilistic delusion है, ठीक है ना. ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अच्छे से कभी दूसरे टॉपिक में. So delusion here when there will be unshakable false belief in our mind, that's called as delusion. ठीक है ना. These are the thought and speech disorders. ये क्या होते हैं thought and speech disorders? Firstly, there is a thought blocking, there is a looseness of association, there is a neologism, there is a poverty of speech and ideation, there is echolalia, there is perseveration, there is delusion. Okay, then moving to the next symptoms, disorder of perception. मैंने पहले ही बोला था that there will be the डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शन. स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब ये है डिसऑर्डर ऑफ द परसेप्शनेशन. मतलब इसमें क्या होता है हेलुसिनेशंस. क्या होते हैं हेलुसिनेशंस? हेलुसिनेशन क्या होता है? फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन. फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन. फॉल्स इमेजिनरी सेंसरी परसेप्शन अगर किसी क्लाइंट में हो, दैट इज नोन एज हेलुसिनेशंस. हेलुसिनेशंस भी बहुत तरह के होते हैं. फॉर एग्जांपल, ये मैं सेपरेट क्लास लूँगा मगर थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊँगा. दैट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशंस आर
For example, auditory hallucination is there, auditory visual hallucinations are there, okay, then tactile hallucinations are there, okay, ठीक है ना, these are some of the types of the hallucinations which we'll study in detail in next class, okay. Then illusion is there. Illusion क्या होता है? These are the two points which comes in the exam, delusion and illusions. ये ध्यान रखना थोड़ा. Illusion होता है for example misperception or misinterpretation of external stimuli. हम बोलेंगे इसको misperception, ये हम बोलेंगे misinterpretation of external stimuli, ठीक है ना, is called as illusion, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बोलेंगे, अगर कभी कभार हम अंधेरे में हो, फिर हम किसी जगह रूप देखें, वो हम समझे कि दैट दिस इज अ स्नेक, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल देंगे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रूप एज स्नेक इन डार्क, ठीक है ना. कभी कभार एग्जाम में आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिल्यूजन एंड इल्यूजन, ओके. इल्यूजन क्या होता है? दिस इज ओनली द मिसपरसेप्शन और वी कैन से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना. इसमें क्या होता है, अगर किसी जगह हमें फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको दैट इज़ अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रोप एज स्नेक इन डार्क, ठीक है ना. अंधेरे में हमें लगे दैट रोप किसी जगह पे हो, हमें लगे दैट इज़ अ स्नेक, वो होता है इल्यूजन. इट्स अ फॉल्स बिलीफ, बट फॉल्स बिलीफ होता है बट इट्स ओनली द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है ना. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इल्यूजन. मगर यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में कभी कभार आता है, इफ इल्यूजन बिकम्स फिक्सड, अगर ये इल्यूजन दिमाग में फिक्सड रहे, इसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एज डिल्यूजन. तब ये डिल्यूजन बन जाएगा, ठीक है ना. अगर तुम किसी जगह रोप के पहले स्नेक देखो, दैट इज़ नॉट अ डिल्यूजन, ओके. आप बोलो कि डिल्यूजन है मुझे, नहीं. अगर वो फिक्सड बन गया, बार बार आपको यही लगा, बार बार आपने वही इंटरप्रेट किया, दैट इज कॉल्ड एज डिल्यूजन, ठीक है ना. ये हमेशा याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ इल्यूजन बिकम्स फिक्सड, इट इज कॉल्ड एज डिल्यूजन, इट्स कॉल्ड एज डिल्यूजन, ओके. सो नेक्स्ट, देयर इज द डिसऑर्डर्स ऑफ इनसाइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट एग्जाम में भी आता है, ये इनसाइट होता क्या है, ओके. First of all, I will tell you the definition of the insight. Insight क्या होता है? Insight means awareness about one's own mental health. Awareness about one's own mental health. Okay? ठीक है ना, कि क्लाइंट को पता होता है कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल किसी किस्म के साइकेट्रिक डिसऑर्डर में पता होता है कि मुझे कोई साइकेट्रिक कंडीशन है, ठीक है ना. दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ इनसाइट. अगर किसी कंडीशन में पता ना हो, पेशेंट को लगे मैं नॉर्मल हूँ, ओके, पता ना हो दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई मेंटल हेल्थ, दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ इनसाइट, ठीक है ना. सो always there will be absence of insight in the psychiatric disorder, psychotic disorder, or in case of schizophrenia, okay. Schizophrenia में क्या होता है? There will be the absence of insight, ठीक है ना, okay. So insight means awareness about one's mental health, okay. Then after that there will be disorder of affect. Affect जैसे मैंने बोला, affective disturbance जैसे हमने पढ़े, मैंने उसी टाइम बोला था आपको मूड डिसऑर्डर होते हैं. क्या मूड डिसऑर्डर होते हैं वो हम देखेंगे. इसमें आता है एपैथी. क्या आता है? एपैथी क्या होता है यहाँ पे? एपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना. लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहना, उसको हम बोलते हैं एपैथी. फॉर एग्जाम्पल कोई मदर हो, वो अपने चिल्ड्रन को दूध देती हैं, उसको उसमें इंटरेस्ट ना रहना, दैट इज़ एपैथी. मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ओके. देन देयर कम्स एनहेडोनिया. एनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू गेन प्लेजर, ओके. किसी भी काम में प्लेजर ना आना, इनएबिलिटी टू गेन प्लेजर. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं, ओके. अच्छी तरह देखो आप. एनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू गेन प्लेजर. अगर किसी जगह समझ में आ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दैट, ओके. एनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू गेन प्लेजर, ओके. अपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, एनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू गेन प्लेजर. इसमें क्या होता है, इस वाले क्लाइंट को क्या होता है, एनहेडोनिया वाले को, ओके, किसी भी काम में इसको प्लेजर नहीं आता है, ओके, ठीक है ना. दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ द अफेक्ट, ओके.
Also, there is one more disorder of affect is inappropriate emotional response. Okay, emotional response inappropriate होता है इसमें, ठीक है ना, in case of schizophrenia. Okay, ठीक है ना, समझ में आया. So disorders of affect means apathy, anhedonia, and inappropriate emotional response. These are all some important symptoms of the स्किज़ोफ्रेनिया. मैं एक बार आपको फिर से बताऊं. प्राइमरी सिम्टम्स आर देयर. प्राइमरी सिम्टम्स में क्या आता है हमें? ब्लूलूर्स फोरे, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बिवेलेंस, एसोसिएटेड लूजनेस. दीज आर द मेजर सिम्टम्स. ओके, देन सेकेंडरी एंड एसेसरी सिम्टम्स आर देयर. One is the thought and speech disorders. In the thought and speech disorders, there will be thought blocking, looseness of association, neologism, poverty of speech and ideation, echolalia, perseveration, and delusions. Okay, then there will be the disorders of perception. In the disorders of perception, there will be the hallucinations, there will be the illusion. Okay, then there will be the disorder of insight. हमेशा याद रखना, insight means awareness about one's own mental health. इसमें क्या होता है? Schizophrenia में there will be absence of insight. Okay, then there will be the disorders of affect. Disorders of affect में क्या आएगा? Affect means mood disorder. Okay, apathy means lack of interest. Anhedonia means inability to gain pleasure. Okay, and also the inappropriate emotional response. Okay, after that diagnosis is there. Diagnosis simply होता है by MMSE. MMSE क्या होता है? Mini mental states examination. Mini mental states examination. Inshallah, after completing these disorders, I will tell you some of the diagnosis for the psychiatric conditions. That is a mini mental states examination. This is very important. ये मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे एक पेशेंट को हम मिनी मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना. मिनी मेंटल स्टेट्स एग्जामिनेशन करते हैं हम इस पेशेंट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, देन clinical observation. By clinical observation, by checking the signs and symptoms, by checking all the symptoms of patients, we can predict that the patient has schizophrenia by signs and symptoms. Very important. Okay, after that मूविंग टूवर्ड्स द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में क्या होता है? यहाँ पे पहले ही हम देते हैं फार्माकोथेरेपी पे हम देंगे एंटीसाइकोटिक. फॉर एग्जांपल क्या एंटीसाइकोटिक हम देंगे? क्लोज़ापिन, रिस्पेरिडोन. ओके, थोड़े से याद रखना आप, जो मैंने इंपॉर्टेंट दिए एग्जाम में आते हैं. ओलेंजापिन. ओके, क्लोज़ापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन. ओके, ये क्या आता है इन द एंटीसाइकोटिक. यहाँ हम दे सकते हैं इस पेशेंट को मूड स्टेबलाइजर्स. ओके, ठीक है ना. मूड स्टेबलाइजर्स में हम यूजुअली क्या देते हैं? कार्बिमेज़ेपिन, या हम दे सकते हैं इसको गाबापेंटीन. ओके, अगर ज़्यादा हो मूड स्टेबलाइज़र, अगर डिसऑर्डर ऑफ इफेक्ट ज़्यादा हो तो हम दे सकते हैं लिथियम भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, या हम इसके अलावा हम देते हैं इसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स. ओके, डायज़ेपाम वगैरह, ठीक है ना. इस पेशेंट को हम फार्माकोलॉजिकली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बाई गिविंग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में क्या आएगा हमारा? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. ओके, फॉर एग्जांपल क्लोज़ापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन. ओके, या मूड स्टेबलाइजर्स हम देंगे, फॉर एग्जांपल कार्बिमेज़ेपिन, गाबापेंटीन, लिथियम. ओके, या हम बेंजोडाइज़ेपिन्स दे सकते हैं, या हम बेंजोडाइज़ेपिन या डायज़ेपाम वगैरह दे सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट विल डू सम साइकोसोशल थेरेपीज. ओके, साइकोसोशल थेरेपीज में क्या आएगा हमारा? फैमिली थेरेपी आएगा, ग्रुप थेरेपी आएगा, एंड बिहेवियर थेरेपी आएगा. दीज आर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपीज यूज्ड इन केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. या हम इसके लिए हम दे सकते हैं लो डोजेस ऑफ ECT. ओके, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है ना. ओके, इन अगर पेशेंट्स मैनेज नहीं होते हैं उसके लिए हम ECT दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. ओके, ठीक है ना. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द मैनेजमेंट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द स्किज़ोफ्रेनिया. इसमें हमें बस रहता है टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. दैट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एग्जामिनेशन, इन केस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अगर वो भी पढ़ाना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ आपको. दैट देयर आर सम ऑफ द टाइप्स of schizophrenia. Okay, these points are very important in case of competitive examinations. Okay, ये points आप याद रखना. Mostly the signs and symptoms are very important for the schizophrenia for the examination point of view. Okay, then I have here some MCQs. Okay, we'll discuss some MCQs here. So schizophrenia comes under which form of the psychiatric disorder? These are very important MCQs. Okay, schizophrenia किस वाले psychiatric disorder में आता है? Okay, first
साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, सेकंड साइकोटिक डिसऑर्डर, थर्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, फोर्थ डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। ओके, जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव करें अच्छे से पढ़े, वो सारे जो उसके जो मल्टीपल चॉइस जो दिए हैं वो नीचे अच्छे से पॉइंट्स पढ़े। जैसे फर्स्ट इज साइक्लोथाइमिक, सेकंड इज साइकोटिक, डिप्रेसिव एंड डिस्थाइमिक। साइक्लोथाइमिक, डिप्रेसिव एंड डिस्थाइमिक, दीज आर ऑल सम मूड डिसऑर्डर्स। ओके, ये क्या होते हैं? मूड डिसऑर्डर्स। ये हमें आएगा मूड डिसऑर्डर्स में, ठीक है ना। इसका जवाब हमें फाइनली क्या है? दैट इट इज़ अ साइकोटिक डिसऑर्डर। जैसे मैंने बोला, साइकोटिक डिसऑर्डर contains the hallucinations and the delusions. मैंने क्या बोला था? What is psychotic? This is a severe kind of disorder in which there will be the disturbance in the thought and there will be a disturbance in the perception, ठीक है ना। That is a psychotic disorder, ठीक है ना। दूसरा मैंने उस टाइम बोला था न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? दिस इज अ फंक्शनल डिसऑर्डर। इसमें क्या आता है न्यूरोसिस में? इसमें आता है सम एंग्जाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स विल बी देयर, ठीक है ना। that is a neurotic, but there will be the absence of hallucination and delusions, which is very very important. कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि hallucination and delusions are present in, आपको लिखना है that these are present in the psychotic disorders, not in the neurotic disorder. Okay, then second objective is there, a disorder manifests by, देखो अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, symptoms, disturbance in thinking, okay, thought disorder, mood, okay, affective disorder, ठीक है ना, and behavior, ठीक है ना, disorder of perception, okay, ठीक है ना। ये सारे किस में मैनिफेस्ट होते हैं? मैनिया में तो नहीं होंगे। मैनिया इज अ मूड, ओनली मूड डिसऑर्डर, ठीक है ना। डिप्रेशन एंड साइकोसिस, साइकोसिस इज अ ग्रुप ऑफ, ओके, हम बोल सकते हैं साइकोसिस इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। इसमें स्किज़ोफ्रेनिया ही नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे डिजीज, इसमें मैनिया भी आ सकता है, ठीक है ना। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है। सो हम स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, मैनिया नहीं हो सकता, ठीक है। इज अ मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन भी नहीं हो सकता। इट कम्स ऑल्सो सम ऑफ द न्यूरोटिक डिप्रेशन हो, न्यूरोसिस में आता है, ठीक है ना। सो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आएगा हमें? स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट करने होते हैं एग्जाम में। देन थर्ड क्वेश्चन इज, मैंने बोला था जब मैं प्राइमरी सिम्टम्स पढ़ा रहा था आपको, दैट सम ऑफ द प्राइमरी सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी सिम्टम्स आर द फर्स्ट सिम्टम्स एंड द मेजर सिम्टम्स इन द क्लाइंट विद स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है ना। उसमें आते थे हमें बिलिरुबिस 4A, मैंने बोला था इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये आता है बार बार एग्जाम में। क्या क्या है? इफेक्टिव डिस्टर्बेंस भी आता है उसमें, ए फॉर इफेक्टिव डिस्टर्बेंस, ओके। एम्बिवैलेंस भी आता है, जैसे मैंने बोला था उसको उस टाइम आपको। देन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ये नहीं आता है, ठीक है ना। देन एसेटिक लूजनेस आता है, ठीक है ना। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के बदले क्या बोला था मैंने? क्या बोला था? ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग हमेशा याद रखना। देयर आर 4 A's in the blue lures which blue lure है given, ठीक है ना। in case of symptoms of the primary symptoms of the schizophrenia, one is affective disturbance, second is autistic thinking, third is associative looseness, ठीक है ना। then fourth objective is there, awareness about one's own mental health is called, जब किसी को पता होगा कि मेरी मेंटल हेल्थ क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला उस टाइम आपको पढ़ाते जब मैं पढ़ा रहा था आपको डिसऑर्डर ऑफ इनसाइट, ठीक है ना। उस वक्त मैंने बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कम्स इन द एग्जाम्स, ओके। अवेयरनेस अबाउट वंस ओन मेंटल हेल्थ इज कॉल्ड एज इनसाइट, इज कॉल्ड एज इनसाइट। एपैथी नहीं हो सकता। एपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। एनहेडोनिया नहीं हो सकता। एनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू गैन प्लेजर, किसी काम में मज़ा नहीं आता इस पेशेंट को जिसको एनहेडोनिया होता है, ठीक है ना। Anhedonia or apathy, these are the disorders of affect, means mood disorders. Equally, disorder of the speech, repetition of speech. Okay, majority of question in the psychiatry comes in this schizophrenia. Okay, after that fifth is here positive symptom of the schizophrenia. असल में मुझे यही आपको बोलना था, MCQs का मतलब यही था कि मैं आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स बोल सकूं। ये एग्जाम में बार बार आता है, व्हाट आर द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स होते क्या है, ठीक है ना। पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं दीज आर द फर्स्ट सिम्टम्स, ओके। इसमें क्या होता है? जब कभी भी एनी चेंज इन बिहेवियर और थॉट हो, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सिम्टम। पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है ना, ओके। विल डिफरेंशिएट अ बिट। पॉजिटिव क्या होता है? इफ देयर विल बी any change in behavior or thought, any change in behavior or thought, okay, any change in behavior or thought, वो किसमें आता है? पॉजिटिव सिम्टम है। पॉजिटिव सिम्टम में क्या क्या देखोगे आप? देखो डिल्यूजन्स, ठीक है ना, डिल्यूजन्स, बिहेवियर में प्रॉब्लम्स, हेलुसिनेशंस, ठीक है ना, एक्साइटमेंट, ठीक है ना, सुसाइडल टेंडेंसी,
सुसाइडल टेंडेंसी, ये किस में आएगा, पॉजिटिव सिम्टम्स में। अगर कभी कभार आपको एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जैसे यहाँ पे दिया है पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज, आपको देना है हेलुसिनेशन, बिकॉज इट्स अ चेंज इन, हेलुसिनेशन इज अ चेंज इन बिहेवियर, ओके, हेलुसिनेशन इज अ चेंज इन परसेप्शन, ओके। हम यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन परसेप्शन, ठीक है ना, परसेप्शन, बिहेवियर ऑफ थॉट, ओके, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, एक्साइटमेंट, सुसाइडल टेंडेंसीज, या हम बोल सकते हैं एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, बिहेवियर हुआ ना, चेंज में बिहेवियर होना, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, हमेशा याद रखना, एग्जाम में आता है। सेकंड इज द नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या आता है, नेगेटिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ओके, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना। अगर प्राइमरी सिम्टम्स के बाद कोई सिम्टम्स आए वो नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं, ठीक है ना। जब कोई पेशेंट विड्रॉवल हो फ्रॉम द वर्ल्ड, when the client will be withdrawed, when the client will show characteristics of withdrawal, या हम इसको बोल सकते हैं these are the late symptoms, these are the late symptoms। इसमें क्या आएगा, apathy, apathy, anhedonia, alogia, alogia मैंने नहीं बोला अभी, alogia means poverty of speech, यहाँ मैं लिखूंगा alogia, poverty of speech, alogia का मतलब क्या होता है, poverty of speech, ठीक है ना। alogia आएगा इसमें poverty of speech, यह आएगा attentional impairment, attentional impairment, ठीक है ना। So the symptoms of the schizophrenia is divided into two types, which is very important in the examination point of view. If there will be the positive symptoms, that means change in perception, behavior or thought, these are the primary symptoms, but ये हमेशा याद रखना, what are the primary symptoms means these are the positive symptoms, okay, delusions, hallucinations, excitement, suicidal tendencies, aggressive behavior, okay। यहाँ आप देखो ये सारा A है, ठीक है ना, ये ऐसे याद रखना, these are the, these negative symptoms का अंडर है A for apathy, A for anhedonia, A for alogia, A for attentional impairment, ये ऐसे याद रखना आप, ठीक है ना। Negative symptoms in this type, the client will show characteristics of withdrawal, ठीक है ना, these are the late symptoms of schizophrenia। फॉर एग्जाम्पल apathy is there, anhedonia is there, alogia is attentional impairment। अब आप बोले कि याद कैसे रखना है, जो भी ए साइड से आए, ठीक है ना, वो आप हमेशा याद रखना, these are the negative symptoms of the schizophrenia, okay। alogia मैंने नया वर्ड यहाँ पे बोला, that is the poverty of speech, that is the poverty of speech, okay, ठीक है ना, समझ में आया आपको। दिस इज ऑल अबाउट द schizophrenia, होप आपको समझ में आया होगा। दिस ऑल फॉर टुडे नाउ, थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू द नर्सिंग ऑफिसर्स, थैंक यू।